ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਉਦਗਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਿਥਿਆਹਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਖਾਸ ਪੂਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਬਾਕੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਾਂਗ, ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਲਿੰਗਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਲਿੰਗਮ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓ, ਯਾਨੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। ਸਰੋਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾ ਹੈ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਖੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੌਤਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕ ਯਾਨੀ 3 ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਦਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆੰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿੰਗਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੂਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗਬਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਸਮ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਾਪਾਂ, ਪਿਤਰਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਸ ਊਰਜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਾਸਕ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਾਨਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੋਖੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਗਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਤੀਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰੋਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੂੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਗਿਆਨ। ਖੈਰ, ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
आज हम नासिक महाराष्ट्र में वाक़ त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर बात कर रहे हैं। ये 12 मुक़द्दस ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मालूमात हैं कुछ मज़ामीन और नोट से, वो इस जगह की तारीख, इसके कुछ असरार और रूहानी अहमियत को समझने में मदद देंगी। हाँ, और कोशिश यही होगी कि अहम और दिलचस्प बातें सामने लाएं। बिल्कुल, मकसद यही है कि इस मुक़द्दस मकाम की गहराई में जाया जाए। और ये जगह कई लिहाज से मुनफरिद है, खास तौर पर वो तसलीश वाली बात। जी, वो सबसे अहम नुक्ता है। त्र्यंबकेश्वर गालिबन वाहिद ज्योतिर्लिंग है जहाँ हिंदू तसलीस यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की पूजा होती है। अच्छा, ये कैसे होता है? मतलब वहाँ मूर्तियाँ हैं अलग अलग? नहीं, मूर्तियां नहीं हैं। ये दरअसल एक मुकद्दस गड़े से निकलने वाले 3 छोटे कुदरती लिंगम की शक्ल में हैं। ओह, आमतौर पर तो ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव भगवान की नुमाइंदगी करते हैं। जी हाँ। यहाँ ब्रह्मा जी की मौजूदगी खास तौर पर मतलब गैर मामूली है, क्योंकि आम हिंदू रिवायत में उनकी पूजा बहुत कम होती है। ये तो वाकई बहुत ही खास बात है। अच्छा, तो इसकी तारीख क्या है? ये मंदिर कब बना? देखिए, जो मौजूदा मंदिर है वो निस्बतन नया है। अच्छा, जी, इसे 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। ओह, पेशवा दौर में? जी, काले पत्थर से। कहा जाता है कि इससे पहले जो मंदिर था उसे मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने नुकसान पहुंचाया था। तारीख में ये चीजें तो चलती रही हैं। बिल्कुल। ये जो नया मंदिर है ये नागरा तर्ज तामीर का एक बहुत अच्छा नमूना है। नागरा तर्ज यानी वो ऊंचे शिखर वाला? जी, वही ऊंचा शहद के छत्ते जैसा मीनार, जिसे शिखर कहते हैं, और स्तूनों पर बहुत बारीक काम। सही। एक और दिलचस्प चीज वहाँ ये है कि कुर्बानगाह पर एक ऊंचा आईना लगा है। आईना? वो क्यों? ताकि अकीदतमंद बराह रास्त लिंगम को देखने के बजाय आईने में उसका अक्स देख सके। अच्छा, ये भी एक अलग रिवायत है। अच्छा, इस तारीखी पस मंदिर के अलावा कुछ असरार की बातें भी सुनी है इस मंदिर के बारे में, वो क्या है? जी हाँ, कुछ बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार बातें हैं। एक तो सबसे ज्यादा मशहूर है खुद ज्योतिर्लिंग का साइज कम होना। साइज कम होना मतलब? जी, जराए बताते हैं कि ये लिंगम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है, या जैसे जमीन में धस रहा हो। है? ये कैसे मुमकिन है? अब ये तो एक मुअम्मा है। अकीदतमंद उसे कली युग यानी जो मौजूदा दौर चल रहा है उसका असर समझते हैं। अच्छा, कि जैसे इलाही ताकतें कम हो रही हैं? कुछ ऐसा ही कि जैसे इलाही तवानाइयां इस दुनिया से पीछे हट रही हैं। कुछ लोग इसे रूहानी तब्दीली का इशारा भी मानते हैं। ये तो वाकई हैरान कौन है। और कोई ऐसी बात? दूसरा बड़ा मुअम्मा है दरियाए गोदावरी का माखज। हाँ, गोदावरी तो यहीं से निकलती है, सुना है। जी, त्र्यंबक के पास ही ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। असातीरी कहानी तो इसे ऋषि गौतम की तपस्या से जोड़ती है। अच्छा, वो गाय वाली कहानी? जी, कि उनसे गाय का कत्ल हो गया था, तो इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने शिवजी से दुआ की कि गंगा को जमीन पर लाएं। और शिवजी ने गंगा को गोदावरी के रूप में भेज दिया? बिल्कुल। मंदिर के पास जो किशावर्ता कंड है उसे गोदावरी का अलामती चश्मा माना जाता है। लेकिन इसमें पुरस्कार क्या है? पुरस्कार ये है कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। शदीद खुश्क साली में भी ये कंड सूखता नहीं। कमाल है। और साइंसदान भी मतलब आज तक इसका असल जेरे जमीन माखज ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। वाह, एक सुकड़ता हुआ लिंगम और एक कभी न सूखने वाला चश्मा, वाकई पुरस्कार जगह है। अच्छा, यहाँ कुछ खास रसूमात भी होती हैं? जी, त्र्यंबकेश्वर कुछ बहुत खास और ताकतवर रस्मात के लिए मशहूर हैं, खास तौर पर जो दोष यानी नकायस या बुरी तकदीर को दूर करने के लिए की जाती हैं। जैसे कालसर्प दोष पूजा है, और एक बहुत ही खास रस्म है नारायण नागबली। नारायण नागबली ये क्या है? ये एक यूं समझें नायाब और बहुत ताकतवर रस्म है जो कहा जाता है कि सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में ही सही तरीके से हो सकती है। अच्छा, और उससे होता क्या है? माना जाता है कि ये उन रूहों को मोक्ष यानी निजात दिलाती है जो किसी वजह से जिंदगी और मौत के चक्कर में फंस गई हों। ओह, और ये नस्ली बद्दुआओं को तोड़ने और पिछले जन्मों के कर्म के कर्ज उतारने में भी मददगार समझी जाती है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। जी, और कहते हैं कि इसकी तासीर की वजह यह है कि ये मंदिर एक बहुत ही ताकतवर कायनाती तवन्नई के मरकज पर वाक़ है। और ये रसूमात कोई भी पंडित करा सकता है? नहीं, इसके लिए मखसूस पुजारी होते हैं जिन्हें ताम्रपत्र धारक पंडित जी कहते हैं। उनके पास आबाई हुकूक होते हैं ये रसूमात करवाने के। अच्छा, यानी ये भी एक खास निजाम है। एक और बात जो सुनने में आती है वो खवातीन के दाखिले पर पाबंदी का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये एक हसास मौजू रहा है। सदियों तक खवातीन को मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से यानी गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, ये सुना था। इसकी वजह क्या बताई जाती थी? कई वजूहात बताई जाती थी। एक तो ये कि ये ज्योतिर्लिंग शिव भगवान की सन्यासी यानी तर्क के दुनिया वाली शक्ल की नुमाइंदगी करता है, जिसकी तवानाई बहुत शदीद मानी जाती है। और ये भी माना जाता था कि गर्भगृह की जो शदीद रूहानी लहरें हैं वो खवातीन के कुदरती तवानाई के निजाम पर मनफी असर डाल सकती हैं। अच्छा, लेकिन अब तो सूरत हाल बदल गई है। जी, हालिया बरसों में इस पाबंदी के खिलाफ काफी आवाजें उठी और कानूनी मुदाखलत भी हुई, जिसके बाद अब खवातीन को गर्भगृह तक जाने की इजाजत मिल गई है। ठीक है। ताहम कुछ लोग अब भी ये सवाल उठाते हैं कि क्या वो पुरानी पाबंदी किसी ऐसी रूहानी साइंस पर मबनी थी जिसे शायद आज हम पूरी तरह नहीं समझते। हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो जराए में है।
कोई फैसला नहीं दे रहे। बिल्कुल, गैर जानिबदारी जरूरी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, त्र्यंबकेश्वर अपनी मुनफरिद त्रिशली पूजा की वजह से खास है। जी। फिर उसकी तामीर नौ की तारीख, वो पुरस्कार सिकुड़ता हुआ लिंगम और कभी न सूखने वाली गोदावरी। हाँ, ये सब बहुत अहम पहलू हैं। और साथ ही नारायण नागबली जैसी खास रसूमात और खवातीन के दाखिले से जुड़ा वो तारीखी और हालिया तनाजुर, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प मुकाम बनाते हैं। बिल्कुल, और ये सब जानकर जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इस मकाम की जो ये समझी जाने वाली कायनाती तवानाई है, वो सुकड़ता हुआ लिंगम और उन कदीम रसूमात की आज भी इतनी अहमियत और ताकत, इन सब के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है? सही। या ये कि किस तरह कहानियां, तारीख और ज्योग्राफिया मिलकर एक ऐसी जगह बना देते हैं जो सदियों तक इतनी गहरी रूहानी कशिश रखती है। ये सोचने की बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है जो हर साल रहस्यमयी तरीके से छोटा होता जा रहा है? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि नासिक की धरती पर बसा एक दिव्य सत्य है। तो चलिए आज उसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लीजिए, आ गई वो जानकारी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको श्रद्धा और आश्चर्य से भर देगी। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं, बल्कि ये अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। सोचिए, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही गर्भगृह में 3 छोटे छोटे लिंग एक साथ विराजते हैं। और ये कोई साधारण लिंग नहीं, ये प्रतीक है सृष्टि की 3 महाशक्तियों के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी हाँ, सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारक, तीनों की ऊर्जा यहाँ एक साथ महसूस होती है। इसीलिए तो स्थान का नाम है त्र्यंबकेश्वर, यानी 3 देवों के ईश्वर का घर। पर असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। कहते हैं सदियों पहले इसी भूमि पर गौतम ऋषि का आश्रम था। एक बार अनजाने में उनसे गौ हत्या का पाप हो गया। इस भारी अपराध से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने अपनी जटाओं को ब्रह्मगिरी पर्वत पर पटक कर साक्षात गंगा को प्रकट किया, जो यहाँ गोदावरी कहलाई। जिस पवित्र कुंड में गौतम ऋषि ने स्नान कर मुक्ति पाई, वो कुशावर्त तीर्थ आज भी मंदिर के पास है, जहाँ डुबकी लगाना हर पाप से मुक्ति दिलाता है। और अब सुनिए वो बात जो आपको हैरान कर देगी। हम सबने सुना है कि भगवान ब्रह्मा को श्राप की वजह से कहीं पूजा नहीं जाता, लेकिन त्र्यंबकेश्वर दुनिया की वो इकलौती और रहस्यमयी जगह है जहां इस श्राप के बावजूद महादेव और विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो इस जगह की शक्ति को करोड़ों गुना बढ़ा देता है। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का इतिहास सिर्फ पौराणिक ही नहीं बल्कि शाही भी रहा है। क्या आप जानते हैं कि कभी इस ज्योतिर्लिंग पर दुनिया का मशहूर नासक हीरा जड़ा हुआ था? जी हाँ, वो बेशकीमती हीरा जो इसकी शान था, उसे बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। कल्पना कीजिए उस हीरे की चमक से ये त्रिमूर्ति कैसी दिखती होगी। और अब वापस आते हैं उस रहस्य से जिससे हमने शुरुआत की थी, ज्योतिर्लिंग का छोटा होना। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि कलयुग के प्रभाव से ये दिव्य लिंग धीरे धीरे धरती में समा रहे हैं, जैसे ये लौकिक दुनिया से परे जा रहे हों। ये एक ऐसी घटना है जो विज्ञान को भी नतमस्तक कर देती है। मंदिर की एक और खूबी है गर्भगृह में ऊपर लगा एक शीशा। क्योंकि मुख्य लिंग एक गड्ढे में है, भक्तों को दर्शन इसी आईने में उनके दिव्य प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। आपको त्र्यंबकेश्वर की कौन सी बात सबसे ज्यादा चमत्कारी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। त्र्यंबकेश्वर, जहाँ त्रिदेव का अनोखा संगम है, गौतम ऋषि की तपस्या से जहाँ पावन गोदावरी का उद्गम है, और जहाँ घटता हुआ शिवलिंग कलयुग का सबसे बड़ा प्रमाण है। वादा है अगला वीडियो 2 गुना मजेदार और ज्ञानवर्धक होगा। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए